بتاؤ تو دو جواب. کام مقصود کہا حضرت نے, یہ کہا کہ طریقہ کار مقصود ہے. بولو. چلو تمہارے پاس کوئی جواب نہیں جانا تو ابھی بولو نا. جھوٹ بول کے ضد میں حسد میں آ کے بے وجہ الزام لگاتے ہو, شرم نہیں آتی آپ کو؟ کی بھی بات پتہ چل جائے گی, سمجھ میں آیا؟ تھوڑی اور بات کرو نا, بھاگو مت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی ارشد علی صاحب دہلی والے, جو آج کل مولانا صاحب کی ضد میں اور حسد میں اندھا دھن ویڈیو اپلوڈ کرتے جا رہے ہیں, ان کی ایک ویڈیو پر میں نے کال کیا ان کو, جس پر انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب بدعتی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ مولانا نے کہا ہے کہ کام بذات خود مقصود ہے, اور مفتی سالم خان صاحب سے انہوں نے بحث کی, اور اس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اس وقت جو تبلیغی جماعت کا طریقہ کار ہے, یا جو مولانا الیاس صاحب نے شروع کیا تھا, وہ مقصود نہیں ہے. تو اس کو مقصود بالذات کہہ دینا یہ بہت غلط بات ہے, لہٰذا مولانا صاحب بدعتی ہیں. تو کہنا یہ تھا, ان سے پوچھنا تھا کہ مولانا صاحب نے یہ کہاں پر کہا ہے کہ کام مقصود سے مراد جو طریقہ کار تبلیغی جماعت کا ہے وہ مقصود ہے, جو مراجع طریقہ ہے 3 دن چلے 4 مہینے. میں نے اس لیے ان کو کال کیا تھا, تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. یہ ان کی خود ساختہ تشریح تھی, خود ہی یہ مطلب نکالا تھا. جبکہ مولانا نے کہا کہ کام مقصود ہے, مجھ سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے, میں نے کہا دعوت مقصود ہے. بس طریقہ کار کو کہاں مولانا نے کہا کہ مقصود ہے؟ تو زبردستی اپنے من سے کسی متکلم کی بات کی تشریح کرنا اور اس پہ بدعتی کا الزام لگا دینا, یہ اہل علم کا شیوا نہیں ہے. کوئی جاہل تو کر سکتا ہے, اہل علم نہیں کر سکتا. اس کے لیے میں نے ان سے ریکارڈنگ پہ بات کرنے کی کوشش کی, لیکن آپ لوگ سن سکتے ہیں کہ آخر تک انہوں نے اس بات کا جواب نہیں دیا کہ مولانا نے کہاں پر کہا ہے کہ طریقہ کار مقصود ہے. مولانا نے صرف کہا ہے کام مقصود ہے, کام سے مراد دعوت ہے, لیکن یہ آخر تک اس کا جواب نہیں دیا, بات کو گھماتے رہے اور بالآخر جو ہے کٹ کر کے چلے گئے. اللہ پاک امت کی کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے, اور اس طرح سے بغض اور حسد کے والوں سے بچنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب بات کر رہے ہیں, ارشد علی صاحب. جی بولیے. مفتی صاحب میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں. وہ تھوڑا سا میں آپ کے کلپ سن رہا تھا, تو اس سے متعلق تھوڑا سا میرے کچھ سوال تھے. کیا سوال ہے, بولیے. وہ جو آپ نے ابھی ایک مفتی صاحب سے بھی بات کی ہے, مفتی سالم خان کسی سے, جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کا جو میں نے بدعتی کہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کام بذات خود مقصود ہے, جبکہ کام مقصود نہیں ہے, دین مقصود ہے. ہاں صحیح بات ہے نا؟ ہاں جی. آپ آگے سوال پوچھیے, سوال کیا ہے آپ کا؟ ہاں تھوڑا سا سن لیجیے. اب سوال یہ ہے کہ مولانا نے صاحب نے یہ کہاں کہا ہے کہ جو طریقہ کار مولانا الیاس صاحب نے شروع کیا ہے, چلا 4 مہینہ 8 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 دن, یہ بذات خود مقصود ہے, یہ لفظ کہاں کہیں؟ اچھا, مولانا سعد صاحب کی پہلی مرتبہ تو بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک وجہ جو ہے نا بدعت کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ تھوڑا اس پہ پہلے روشنی ڈال دیں, پھر دوسری وجہ پہ ہم بات کریں گے, خالی اس پہ روشنی پر ڈال دیں. اور بھی بہت ساری وجہ ہے, جیسے مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ خود جائے بغیر دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. میں یہ چاہ رہا تھا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیں. آؤں گا میں, پہلے میری بات سن لیجیے. جی. اخبار سے, رسائل سے, ان ساری چیزوں سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا, یہ بولتے ہیں نا مولانا صاحب. ہاں میں ابھی اس پر میں بات کر سکتا ہوں, لیکن تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال دیں. یہ ہے نا کہ میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں نا, بدعت کی صرف ایک وجہ نہیں ہے نا, ایک وجہ بھی بدعت ابھی جو جس ہو گئی. تو میری بات سنیے, پہلے پوری بات سنیے. جس وجہ پہ آپ نے بات کرتے خان صاحب سے نا, اس کو بیان کر دیں. آ رہا ہوں, جی جی اوپر آ رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ مانتے ہیں نا آپ؟ ہاں جی بولیے. صاحب نے کہا ہے خود ہاں نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا تو مولانا سعد صاحب سے اگر آپ پوچھو, مولانا سعد صاحب کے بیانات اگر آپ سنو, تو مولانا سعد صاحب کے بیانات سن کر صاف پتہ چلتا ہے کہ مولانا سعد صاحب جس ترتیب کے ذریعے سے کام کو چلا رہے ہیں نا, وہ اسی کے اندر تبلیغ کو منحصر مانتے ہیں. یہ جنرل باتیں ہیں, بیانات ہے, جنرل باتیں نہیں. اگر آپ تھوڑا موضوع پہ بات کریں نا, کہ جو میں نے سوال کیا, میری بات سنو. کسی کی بات کے تعلق سے جب فیصلہ کیا جاتا ہے نا, تو اس آدمی کی جو ذہنیت ہے اور اس کے جو دیگر سارے جو بیانات ہیں, ان ساری اس کی جو سوچ ہے اس کو سامنے رکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ اصول بھی آپ کہاں سے لائے ہیں کہ انسان کی ذہنیت اور اس کی سوچ سب دیکھ کر؟ تو کیا مطلب سیاق و سباق سے کاٹ کر آپ فیصلہ کرو گے؟ سیاق و سباق تو متکلم خود بیان کرتا ہے. اصول تکفیر پڑھی آپ نے, دیوبند سے چھپی ہے. متکلم خود بیان کرتا ہے سیاق و سباق میں, تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ سیاق و سباق سے کاٹ. پہلی بات تو سنو, میں اس پر آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں, تھوڑا دیر مجھے بھی تو بولنے کے لیے, لیکن اگر آپ نے یہ بات چھیڑی ہے, جواب سن لو نا.
तो इसी का जवाब दे जो मैं आपसे पूछा, वरना इस पर मैं नहीं। बात कर सकता हूँ आपको। नहीं, आपने जो सवाल किया है वो जरूरी थोड़ी है उसको इमाम नबी जवाब फरमाते एक लाइन में रहमतुल्लाह दिया अलैह, जाए। इमाम नबी फरमाते रहमतुल्लाह अलैह कि एक मुतकल्लिम की जबान से अगर कोई कलाम निकलता है हाँ। और उसकी बात जो है शिरक लगती है या कुफ्र लगती है, तो हाँ। अगर वो मुतकल्लिम मौजूद नहीं है और उससे पूछ नहीं सकते हैं, तो हाँ। उसूल तकफीर में ये बात लिखी है, देवबंद से छपी हुई है कि ये इमाम उसके नववी ने उस कहाँ पर लिखी है ये बात? उसूल तकफीर है, देवबंद से छपी हुई है किताब, कौन सी उसमें आप किताब? पढ़ लें। इमाम नववी की किताब का नाम बताओ। उसूल तकफीर में इमाम नबी रहमतुल्लाह का कौल लिखा हुआ है, ठीक है। इमाम नववी की किताब का भी इमाम नववी की किताब बोल रहे थे, अभी इमाम नववी की किताब का कौन उसूल किताब में लिखा हुआ है? उसूल तकफीर के अंदर अभी देखो ये जो बात है ना आपकी, ये हाँ। कैसी बात है मालूम है, ये बहस वाली बात है। नहीं, बहस वाली बात नहीं है। आप पहले ये बात आप बताइए कि जब मौलाना साहब- आप मौलाना साहब सुनिए, पे आपने इश्काल किया तो आप बयान का नाम बताया, कौन से बयान में किस वक्त में मेरे कितने बजे चैनल कहा के है। ऊपर मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है प्रूफ के साथ में। आप इसका जाइए। सिर्फ जवाब दे दे हजरत, नहीं, अगर आप आपको अल्लाह ने जाइए, इल्म आपको अता पूरा किया है वजाहत कि मौलाना ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं क्या। मुकम्मल चाहिए ना, मुकम्मल वजाहत में यहाँ पर कॉल नहीं, तो आप जनरल बात कर रहे हैं। देख लीजिए वीडियो, आप जनरल बात कर रहे हैं। सबूत के साथ में है। मौलाना साहब ने मुरवजा तरीके को कहा है, मकसूद है क्या। अरे सीधी सी बात है, मुरवजा तरीके ही को नहीं। मानते हैं, मदारिस को नहीं नहीं, मानते वो। मौलाना ने ये लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किए हैं। मदारिस को और खानकाहों को आप मान या लीजिए हजरत की ये सोशल आपकी मीडिया खुद के साख जरिए का- से बात पहुंचाने को तबलीग मानते हैं वो। वो जो मौलाना ने कहा, आपने वो लफ्ज का जवाब दीजिए कि मौलाना ने कह रहे हैं कि दावत के काम जरिए से करने को तबलीग मानते हैं वो। काम बजाते खुद मकसूद है, ये मौलाना ने कहा। इसकी तशरीह करिए हजरत। पहुंचाने को तबलीग मानते हैं वो। देखो असल में ये है ना, इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है, आपने नहीं, बस जवाब है मेरे अपने पास। मन घड़त बातों से कह दिया, हजरत के ऊपर इल्जाम लगा दिया। मौलाना मौलाना साहब ने ये जुमला इस्तेमाल किया है क्या हजरत। वीडियो के अंदर है, आप वीडियो सुन लीजिए। नहीं नहीं, मौलाना मैंने एक घंटा वीडियो अभी सुना आपका, एक घंटा सुना मैंने आपका। नहीं नहीं नहीं, एक घंटे आपने की बात किधर नहीं है। मौलाना साहब ने ये वीडियो कहाँ मैंने कहा अपलोड है? किया ना दलाइल के साथ में। मौलाना साहब ने ये जुमला कहाँ पर कहा है हजरत, खाली इसी पर आ जाए, खुदा के लिए, खुदा का वास्ता देता हूँ कि आप इस पर आ जाए। मौलाना साहब ने कहाँ पर कहा है? आपने वीडियो सुना मेरा? आप पूरी मैंने ऑडियो सुनी, तुमने यही कोशिश की साबित करने की कि मौलाना कह रहे हैं। अगर मैंने दलील दी है वो वीडियो सुना आपने? तो एक मिनट मुझे बताए ना, क्या क्या कहना चाह रहे हैं वीडियो आप। के अंदर मैंने दलील दी है वो वीडियो सुना आपने? काम मकसूद है या मुरवजा तरीका मकसूद है, मौलाना ने क्या कहा है जरा बता दे खाली, इतना मैं बताइए। क्या पूछ रहा हूँ आपको, जिस वीडियो के अंदर देखिए ये है ना, इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है। नहीं, जवाब है मेरे पास और वीडियो के अंदर upload ये बता दो किया सिर्फ ना एक मिनट में, कीजिए। या लो मान लो कि मैंने खुद साख्ता तफसीर की मौलाना की बात की क्या तफसीर की है? कि मौलाना ने कहा काम मकसूद है, आपने उसको मकसद मतलब ले लिया कि मुरवजा तरीका मकसूद कह रहे हैं। अरे ये आपने खुद बनाया माना। आप वीडियो देखा है मेरा जिसमें मैंने ये बात कही है? एक दो मिनट में इसका जवाब दे दो ना खाली, क्या मतलब मौलाना की बात का। देखा है कि नहीं देखा? पहले मैंने तो आपकी मुफ्ती सालिम खान से आपके एक घंटा सुना मैंने। करने के लिए मैं तो एक घंटा सुना, आप इसका जवाब दे दो ना। मैंने आपकी ऑडियो सुनी है मुफ्ती सालिम खान साहब के साथ में, आप यही साबित कर रहे हैं कि मौलाना कह रहे हैं, मौलाना कह रहे हैं। जो वीडियो के अंदर मैंने अपलोड किया है वो वीडियो सुना आपने? हजरत यही जुमला आप कह के निकल गए कि मौलाना बिदअती है। आपके पास जवाब नहीं है, आप ये जवाब नहीं दे सकते ना, ये वो वीडियो सुना मैंने। खाली आप ये कह रहे हैं कि आप- मौलाना साहब हेलो, का जो आप- काम मकसूद है आप एतराज या कर मुरवजा रहे तरीका हैं। मकसूद है। आप एतराज कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपकी वीडियो सुनी। अपलोड की है, वो वीडियो सुना है आपने, मैंने भी बहुत सारी वीडियो अपलोड की, आप जाके सुनते मेरी पूरी वीडियो। नहीं नहीं, क्या 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 जुमला का है मौलाना साहब ने जरा मौलाना साहब ने कहा है, हाँ हाँ इस पर आए, अगर आप मौजूद में बात करेंगे तो मैं बहस नहीं करूंगा। हाँ, अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, अकल दिया है। है। मुफ्ती साहब, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा मौजूद से अकल से बात नहीं करें। हो, लेकिन बहस करना है मुफ्तियों के साथ में, उलमा नहीं नहीं नहीं, अकल से बात करें, चीजें है ना, अकल से बात करें, अकल से बात करें। आप थोड़ा सा, अल्लाह ने आपको अकल दी है, मुफ्ती हैं आप। सवाल ये है मेरा कि मौलाना साहब ने क्या यूं कहा है कि जो मुरवजा तरीका तबलीग का है ये मैं मकसूद आपसे है, ये पूछ रहा हूँ कि मौलाना साहब ने क्या कहा है, ये जो बताओ ना आप मुझे। काम मकसूद है, काम से क्या मुराद है मौलाना साहब की? दावत। अच्छा, हाँ दावत चाहे जिस तरीके से भी हो वो चल चलिए, जाएगा। सिर्फ एक मिनट, तरीके कार की बात नहीं हो रही है, दावत मकसूद है। सुनो सुनो, मौलाना साहब की मुराद आपने कहा दावत है, हाँ। तो दावत से मौलाना साहब क्या मुराद लेते हैं? दावत का काम किसी तरीके से भी किया जाए, क्या दावत का काम क्या मुराद लेते हैं? कौन सा दावत का काम अल्लाह की तरफ बुलाना, दिन की तरफ शूरा बुलाना, ये मकसूद शूरा है। वाले जिस तरीके से कर रहे हैं वो चलेगा मौलाना साहब को? दावत मकसूद, तुम देखो वहां ने जुमला इस्तेमाल शूरा किया, वाले तो मौलाना साहब के तरीके से कर रहे हैं ना। दावत का। मौलाना साहब ने कब कहा शूरा वाले बिदअती है? मौलाना साहब ने कब कहा शूरा वाले गलत है? मौलाना साहब के नजदीक शूरा वालों का तरीका मकसूद है, क्योंकि वो भी दावत तरीका, कर रहे हैं। फिर देखो ये फिर आप बेअदबी वाली बात है, तरीके की बात ही नहीं हो रही है, तरीके की बात नहीं हो रही है, फिर इधर उधर घुमा रहे हो। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको? तरीके की बात नहीं हो रही है। मौलाना साहब के नजदीक काम मकसूद है, काम मकसूद है। काम से मुराद आपने क्या कहा? दावत। दावत है, जी, ठीक है। अब जी। दावत देना जो है, हाँ, हाँ। ये किसी एक तरीके के अंदर मखसूस है या किसी भी तरीके से काम किया जा सकता है? हाँ हाँ, बस अब रुकिए थोड़ा सा, अल्लाह के वास्ते रुकिए। मौलाना साहब ने कब कहा कि जो मखसूस तरीका तबलीग का है वही मकसूद है? ये कहाँ कहा है? ये खारगर इज्तिमा के अंदर कहा है। क्या कहा है?
मैं था वहाँ पर, क्या कहा है बताओ। खारगर इज्तिमा में थे आप? जी जी बिल्कुल था, 3 दिन पूरा सुना मैंने। मौलाना साद साहब ने खारगर इज्तिमा के अंदर ये कहा है और अल्लाह की कसम खाकर कहा है हाँ। कि खुद जाए बगैर तबलीग का फरीजा अदा नहीं होगा। 1 मिनट, तबलीग का फरीजा अदा नहीं होगा। हाँ, तबलीग का फरीजा अदा नहीं होगा, तबलीग मकसूद है या तरीकेकार मकसूद है, इस पर थोड़ा सा मुझे रोशनी डाल दें। आप क्या आप बात को घुमा रहे हैं। मकसूद है कि तरीकेकार मकसूद है आपके? मैं तो कह रहा हूँ दावत मकसूद है, वहाँ वही कह रहे हैं दावत मकसूद है। नहीं, दावत मकसूद है, कोई भी तरीका मकसूद नहीं है ना। तरीका मकसूद नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ तरीका मकसूद है। की तरतीब वाजिब नहीं है ना। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल बिल्कुल तबलीगी जमात में निकलने को आप नहीं, मुबाह समझते हो, नहीं, फर्ज समझते हो, वाजिब तबलीगी जमात, समझते हो? जी जी तबलीगी जमात के अंदर निकलना बिल्कुल हाँ। वाजिब नहीं है। मौलाना कह रहे हैं, मत बोलो, ये कहो कि मुबाह है कि नहीं, ये बताओ। बिल्कुल बेहतर है, बेहतर नहीं, मुबाह है। बिल्कुल। क्या है मुबाह है, मुस्तहब है, क्या है? मुस्तहब है, बिल्कुल जरूरी है, मुस्तहब होने की दलील जरूरी है, जरूरी है। जरूरी है। जरूरी का अगर आप अरबी के अंदर तर्जमा करो तो उसी जरूरी को वाजिब कहते हैं। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट सुनो सुनो उर्दू का लफ्ज है, उसको सुनो सुनो वाजिब सुनो कहते हैं। सुनो, एक आदमी को यही बात जो है एक आदमी को जाहिलाना बात जो है ना, नहीं नहीं जाहिलाना बात नहीं, आप इस पर आए नहीं, वो कह रहे थे कि जरूरी, आप इस पर आए नहीं, अरबी के अंदर वाजिब होता है। नहीं आप सुनिए, आप इस पर आए नहीं, आप इस पर आए नहीं कि मौलाना ने काम को मकसूद कहा है। कि आपके नजदीक मौलाना साद साहब की बात छोड़ो, पहले आप ये तो बताओ आपके नजदीक क्या है? नहीं आपके मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, नहीं ये आप भगा रहे हो, आप यहाँ वहाँ भागोगे, मुझे पता है। माँ साहब ने ये जुमला इस्तेमाल किया है कि काम मकसूद है कि मुआवजा तरीका मकसूद है, खाली इसी पर रहो। बताता हूँ, नतीजा उसी के ऊपर आया, टेंशन नहीं नहीं नतीजा नहीं, ये खुद साकर तफसीर है तुम्हारी। आपके नजदीक दावत मकसूद है, हाँ दावत मकसूद है, जरूरी है आप दावत। खुद तफसीर करो। दावत मौलाना साद साहब ने कहा काम मुराद है और काम की तफसीर आप दावत से कर रहे हो। बिल्कुल। हमारी तफसीर काबिल कबूल है, हमारी तफसीर काबिल कबूल तो फिर माँ साहब से पूछ रहे चलो, तो पूछ लो जाके मौलाना साहब तो तुमने बगैर पूछे क्यों इल्जाम लगाया बिदअती है? मैंने बगैर पूछे थोड़ी, मैंने तो पूरी तहकीक करके इल्जाम लगा तो जवाब दो ना, कहाँ है? हकीकत है। मालेगांव इज्तिमा में, सुनिए सुनिए हजरत, मालेगांव इज्तिमा में माँ साहब ने खुद ही जुमले इस्तेमाल किए हैं। मालेगांव इज्तिमा में तबलीगी जमात आप सुनोगे नहीं, क्या है? आपके पास जवाब नहीं है तो आप सुनोगे नहीं। नजदीक तबलीगी जमात में जाना क्या? मौलाना साहब ने मालेगांव इज्तिमा में ये जुमला इस्तेमाल किया है। को छोड़ दो पहले, सुनो सुनो कि ये जो तरीकेकार है लोग इसी में पड़े हुए हैं, बल्कि तरीकेकार मकसूद नहीं है, असल दीन मकसूद है। ये मालेगांव इज्तिमा में खुद कहा है, तरीकेकार को हजरत खुद दीन नहीं कह रहे हैं, मकसूद नहीं कह रहे हैं। तुमने जबरदस्ती तरीकेकार को फिट कर दिया मौलाना के ऊपर। मौलाना अपनी बातों से पलटते रहते हैं। नहीं तो तुमने जबरदस्ती बगैर सोचे समझे, तुमने जिद में हसद में आके मौलाना पर ये बात फिट कर दी है। मान लो करते रहते हैं, आपने मौलाना के जिद में आकर ये बात फिट कर दी है। मौलाना ने कभी ये जुमला इस्तेमाल नहीं किया है कि मुआवजा तरीका मकसूद है, करते रहते हैं। कभी नहीं कहा है मौलाना ने। आप पहले ये बताओ, पहले नहीं आप बोल दो ना कि मैंने गलती की, बोल दो ना मैंने गलती की है। बिल्कुल गलती नहीं है। मौलाना साहब मौलाना ने कब कहा है, मौलाना ने कब कहा है कि मुआवजा तरीका मकसूद है? कहो कहो मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, मौलाना कब कहा है मौलाना ने कि मुआवजा तरीका मकसूद है? घंटों भर उसी को मुफ्ती साहिब साहब से बहस कर रहे हो और तुमको ये नहीं पता है कि मौलाना साहब ने जुमला इस्तेमाल ही नहीं किया है। लगा लो और नहीं तुम बोलो ना किधर का है मौलाना ने, तुम्हारी भी जहनीत ये है, किधर का है मौलाना ने? आज की तरतीब के अंदर जाना जरूरी है। जहनीत तुम दिल के हाल जानते हो, आलमुल गैब हो तुम, आलमुल गैब हो तुम, समझ में आया? आलमुल गैब हो, ये बात बताओ कि आलमुल गैब हो, सबकी जहनीत को जानते हो, आलमुल गैब हो तुम, सबकी जहनीत को जानते हो, तुम आलमुल गैब हो। इसकी शरई हैसियत क्या है, पहले ये बताओ। पहले बताओ जिस मकसद के लिए मैंने फोन किया था तुम्हारे पास जवाब है कि नहीं उसका? हैसियत क्या है? जिस मकसद के लिए मैंने फोन किया उसका जवाब है कि नहीं तुम्हारे का पास? जवाब दे रहा हूँ। तबलीगी कह दो कि हजरत मैंने गलती की, मैंने काम को मुआवजा तरीका समझ लिया, कह दो ना। गलती नहीं की, मौलाना कहो। सब बिदाती हैं, कोई गलती नहीं की। वो तो अल्लाह फैसला करेगा, तुम खुदा हो, क्या है? तुम खुदा हो, तो तुम खुदा हो, तुम खुदा हो फैसला। मैं तो किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा तुम्हारी तरह, तुम खुदा हो, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा तुम्हारी तरह। तो तुम तो ये इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने गलती की। हाँ तो तशरीह कर दो ना उसकी, तभी तो फोन कर रहा हूँ, तशरीह करो। अरे मैं तुमसे काम मकसूद है या मुआवजा तरीका मकसूद है? बताओ क्या क्या मौलाना ने, के तौर पर पूछ रहा हूँ, नतीजे के अंदर खुद ब खुद साबित हो जाए। क्या नतीजा? ये पहले बताओ। मौलाना खुद कह रहे हैं काम मकसूद है, काम से बुरा दावत है, दावत मकसूद है। भाई तुम्हारे नजदीक तबलीगी जमात की तरतीब वाजिब है या काम मकसूद है कि दावत का तरीका मकसूद है? काम की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इस पर आ जाओ ना हजरत, कह दो मुझसे, हमारी जहालत है ना। मुफ्ती साहब कह दो कि मुझसे गलती हो गई, कह दो मुझसे गलती हो गई तो मैं दूसरे मौजूद में बात करता हूँ, कह दो मुझसे गलती हो गई। कोई गलती नहीं हुई है। मौलाना साद साहब माँ साहब ने कहाँ कहा है कि मुआवजा तरीका मकसूद है? बोलो, तुम पहले ये बात बताओ, बोलो किधर कहा है? भाई उनके ऊपर शाह वलीउल्लाह फिक एकेडमी किधर है? मौलाना साहब ने किधर कहा है मुआवजा तरीका मकसूद है? खाली इतना जवाब दे दो। फिक एकेडमी का फतवा भी मौलाना साहब ने किधर कहा है कि मुआवजा तरीका मकसूद है? इसका जवाब दे दो। करने से कोई दिफा नहीं कर रहा। हजरत देखो ये सुनने वाले सुनेंगे बाद में कि ये मुफ्ती साहब जो है इन्होंने मौलाना साहब पे इल्जाम लगाया कि मौलाना कह रहे काम मकसूद है और उससे मुराद इन्हें मिल गया मुआवजा तरीका, 3 दिन चिल्ले 4 महीने, जबकि मौलाना ने ये जुमला इस्तेमाल ही नहीं किया है।
अरे मौलाना ने ये जुमला इस्तेमाल नहीं भी किया तो भी दूसरी 1000 बिदअत है मौलाना साहब। नहीं तो इस पर कौन मैंने गलती की है, इस पर कौन मैंने गलती की है? बिल्कुल सही कहा मैंने मौलाना साहब बिदअत की। किधर कहा है, किधर कहा है कि काम मकसूद है? मैं तुमको वही तो पूछ रहा हूँ, किधर कहा है काम से मुराद और तरीक़ेकार है? जमात की तरतीब क्यों तुम्हारे से जवाब किसे नहीं दिया किधर जा रहा? कहा है कि काम से मुराद? क्यों नहीं दिया जा किधर? रहा? तबलीगी जमात की तरतीब क्या है? सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारे से जवाब तरीक़ेकार मकसूद नहीं होता कभी भी। नहीं नहीं तुम मुझे ये जवाब दो। तरीक़ेकार कभी मकसूद नहीं होता हजरत। तरीक़ेकार तो आप मुफ्ती साहब का जो लेबल लगा के घूम रहे हैं 9 साल 11 साल से, ये भी कहीं नहीं लिखा होगा कि 11 साल में कोई मुफ्ती बनता है। मेरे भाई तरीक़ेकार कहीं मकसूद नहीं होता हजरत। जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा तुम्हारे से? सुनो एक मेरी बात सुनो, तबलीगी जमात में जाने की शरई हैसियत क्या है? मुझे ये बताओ 9 साल में कोई, जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? 9 साल में या 11 साल में कोई आलिम बनता है? जवाब तुम्हारे से क्यों नहीं दिया 9 जा रहा? साल में या 11 साल में कोई आलिम बनता है क्या? ये कहाँ से लाए हो आप? कुछ जवाब और कहाँ से लाए हो आप? ये कहाँ से लाए हो कि 9 साल में या 11 साल में कोई आलिम मुफ्ती बन जाएगा? ये भी तरीक़ेकार ही है ना। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाह रहे हो? तुम जिसके लिए मैंने फोन किया तो तुमने घुमा दिया उस बात को। उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं। तुम्हारे बताओ तबलीगी तो जमात दो की जवाब। हैसियत क्या है? काम मकसूद कहा हजरत ने, ये कहा है कि तरीक़ेकार मकसूद है। बोलो चलो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, जाने दो अभी। बोलो ना। जब तुम झूठ जवाब बोल दे के दोगे ना, जिद में तुम्हारे हसद में आके बेवजह इल्जाम लगाते हो, शर्म नहीं आती आपको? की भी बात पता चल जाएगी।